Let us start with new essay, that is essay 265, communicating deficiencies in internal control to TCWG and the management. Now, in this, what does the auditor do? So, auditor examines the financial statement. So, auditor examines the financial statement, and based on it, he forms the opinion. Forms the opinion, uh, and opinion is based on whether he has checked internal control systems and designed the substantive procedure. Designed the substantive procedures. Now, in the checking of internal control systems, the auditor shall check the deficiencies in internal control system. Deficiencies in internal control system. अब deficiencies क्या होती है वो डिस्कस कर लेंगे. तो deficiencies in internal control system. अब deficiencies क्या होती है? तो पहले deficiencies का पहला मतलब तो होता है दो दो टाइप का मतलब deficiencies दी है. तो पहला तो internal control system exist. Internal control system exist करते हैं, but PDC मतलब not but internal control so internal control system exists, but it is not so competent. It is not so competent, and because of it, it is very difficult to PDC the misstatements present, disclose, and prevent, detect, and correct the misstatement. Prevent, detect, and correct the misstatements. तो वो करना पॉसिबल नहीं है. सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट तो करता है, बट इट इज नॉट सो कंपोनेंट दैट इट विल प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मिसस्टेटमेंट्स. और दूसरा होता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही मिसिंग है, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही नहीं है, तो इस टाइप से मिसस्टेटमेंट्स डेफिशिएंसीज अराइज हो सकती है. तो डेफिशिएंसीज दो टाइप से अराइज होती है. कैसे कैसे? पहला तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करती है, बट इट इज नॉट सो कंपोनेंट दैट competent that it will prevent, detect और correct the misstatement. और दूसरा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो इसको क्या करेगा? ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा. सो ऑडिटर विल कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट. ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट को. अब टीसीडब्ल्यूजी को क्या क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी को क्या क्या करेगा और मैनेजमेंट को क्या क्या करेगा? तो टीसीडब्ल्यूजी को है ना सिर्फ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज ही वो राइटिंग में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज ही कन्वे करेगा, कम्युनिकेट करेगा, और वो राइटिंग में करेगा. और मैनेजमेंट को वो दोनों करेगा, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, नॉन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज भी वो मैनेजमेंट को बताएगा. और सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी तो राइटिंग में बताना जरूरी है, बट नॉट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी वो ओरल या फिर राइटिंग दोनों में बता सकता है. सो दिस वाज इट. इन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या होता है, कम्युनिकेट कैसे करना है, वो सब होगा. So now we will go move forward. This essay deals with auditors' responsibility to communicate to TCWG and management about deficiencies in internal control that the auditor has identified in audit of financial statement. This kind of communication is known as letter of weakness. मतलब ये जो अपना communication बोला उसको अपन बोलते हैं letter of weakness. लेटर ऑफ वीकनेस बोलते हैं उसको. Then, auditor shall identify deficiencies in internal control and determine whether there are significant deficiencies. He shall communicate in writing significant deficiencies on a timely basis. अपन ने डिस्कस कर लिया. Deficiency in internal control system. Deficiency in internal control system क्या होता है? When a control is designed, implemented, or operated in a way that it is unable to prevent, detect, and correct a misstatement in financial statement on a timely basis, or when it is missing. तो अपन ने बात कर ली कि आईसीएस एग्जिस्ट करता है बट नॉट सो कॉम्पिटेंट दैट इट विल प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मिसस्टेटमेंट, या फिर आईसीएस मिसिंग है, आईसीएस है ही नहीं, तो डेफिशिएंसी मानी जाती है. नाउ वी विल मूव टुवर्ड सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी. अब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या होती है? तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल मींस deficiency in internal control that is of sufficient importance. Significant deficiency क्या होती है? It is of sufficient importance to convey to the TCWG. Sufficient importance to be conveyed to TCWG. तो significant deficiency क्या होती है? Is of sufficient importance to it is, that it is to be conveyed to the TCWG. Now, अब इसमें है ना दो आंसर्स हैं. एक तो है मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड. तो मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड है पहला. इसको अपन बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड. एग्जाम्पल्स कौन कौन से एग्जाम्पल्स है जो अपन बोल सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है. तो क्या एग्जाम्पल्स क्या क्या है? तो उसके एग्जाम्पल्स है ईवा केयरफुल रहे इन्वेस्टमेंट करते वक्त म्यूचुअल फंड्स में. ईवा केयरफुल रहे इन्वेस्टमेंट करते वक्त म्यूचुअल फंड्स में. ईवा सीएफ ईवा ईवा ईवीए ईवा केयरफुल रहे सीएफ while doing investment in mutual funds. So EVA careful rahe while doing investments in mutual funds. So EVA CFIMF EVA CFIMF EVA CFIMF EVA CFIMF EVA careful rahe while doing investments in mutual funds. Now EVA
तो पहले तो ई से देख लेते हैं। तो ई से क्या है, सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन डिटरमाइनिंग ऑफ एस्टिमेट, सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन डिटर्मिनेशन ऑफ एस्टिमेट, सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन डिटर्मिनेशन ऑफ एस्टिमेट्स। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। फिर अमाउंट एक्सपोज्ड, अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अमाउंट्स एक्सपोज्ड। फिर सी से आ जाता है, सी से अपना आ जाता है importance of controls of financial reporting process, importance controls of FRP, controls over controls over financial reporting process। F से आ जाता है frequency, cause and frequency of exceptions, frequency of exceptions। फिर interaction of deficiency with other deficiency, interaction of deficiency with other deficiencies। एम से आ जाता है लाइकलीहुड ऑफ डेफिशिएंसीज लीडिंग टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के लाइकलीहुड है कि नहीं, तो उससे अपन को पता चल जाएगा कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है कि नहीं। एंड लास्ट है ससेप्टेबिलिटी टू लॉस, फ्रॉड, टू लॉस और फ्रॉड ऑफ रिलेटेड असेट, तो फ्रॉड ऑफ असेट और लायबिलिटी। तो आंसर क्या है, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, एग्जांपल्स क्या है फॉर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, तो वो है ईवा, CFIMF। ईवा केयरफुल रहे इन्वेस्टमेंट करते वक्त म्यूचुअल फंड में। सो ईवा CFIMF, ई से एस्टिमेट्स। तो एस्टिमेट्स में क्या है, तो पहला तो है सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एस्टिमेट्स, वी से वॉल्यूम, ए से अमाउंट एक्सपोज, सी से कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, एफ से फ्रीक्वेंसी एंड कॉज ऑफ एक्सेप्शंस, आई से इंटरेक्शन ऑफ डेफिशिएंसी विद अदर डेफिशिएंसीज, एम से मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, लाइक्लीहुड ऑफ डेफिशिएंसीज लीडिंग टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड एफ से है फ्रॉड ऑफ असेट्स एंड liabilities। Now we will see the point of controls over FRP। तो कंट्रोल ओवर FRP में है ना, अंदर थोड़े और पॉइंट्स है, तो वो क्या क्या पॉइंट्स है वो देख लेते हैं फटाफट। कुछ है नहीं, जनरल मॉनिटरिंग, जनरल जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल्स, तो वो है पहला। तो फिर सेकंड कंट्रोल्स में क्या है, दूसरा कंट्रोल्स ओवर फ्रॉड, तो फ्रॉड के लिए क्या क्या कंट्रोल्स है, तो उसके ऊपर पॉइंट है सेकंड। फिर थर्ड कंट्रोल्स ओवर सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी है, तो उसके ऊपर कंट्रोल्स क्या है। फिर कंट्रोल्स ओवर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टी अपने मामा चाचा को के साथ ट्रांजेक्शन किए, तो वो उसका कंट्रोल, उसके ऊपर कितना कंट्रोल्स है। कंट्रोल्स ओवर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब आउटसाइड द नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसके ऊपर कंट्रोल्स क्या है। तो कंट्रोल्स ओवर FRP फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, तो पहला तो जनरल मॉनिटरिंग करो। फिर फ्रॉड के ऊपर क्या क्या कंट्रोल्स है वो देख लो, अकाउंटिंग पॉलिसीज पे क्या क्या कंट्रोल है वो देख लो, रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन पे क्या क्या कंट्रोल है, अगर कोई ट्रांजेक्शन आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहा है तो उसके ऊपर क्या क्या कंट्रोल है वो देख लो। सो मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड हो गया, ईवा केयरफुल रहा है इन्वेस्टमेंट करते वक्त म्यूचुअल फंड में, ईवा CFIMF, इट्स डन। Now we will move to the second part. Second part is indicators of significant deficiencies. Indicators of significant deficiencies. Indicators. तो दो ही आंसर इंपॉर्टेंट है, पहला तो मैटर्स है, मैटर्स और एग्जांपल्स, और दूसरा इंडिकेटर। दोनों उल्टा सुल्टा छाप के मत आ जाना। अपना मैटर्स और एग्जांपल है ईवा CFIMF, ईवा केयरफुल रहे इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में। और इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज क्या है, मेरी डॉक्टर, मेरी डॉक्टर, मेरी डॉक्टर। तो मेरी डॉक्टर को अपन डॉक्टर को क्या बताया, डेफिशिएंसीज बताते हैं, तो मेरी डॉक्टर, मेरी डॉक्टर। इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, एम से आ जाता है, एम से एम से है एविडेंस ऑफ मैनेजमेंट्स इनएबिलिटी टू ओवरसी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट्स इनएबिलिटी टू ओवरसी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू ओवरसी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर ई से आ जाता है एविडेंस ऑफ इनफेक्टिव एस्पेक्ट्स, ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, एविडेंस ऑफ इनफेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, तो वो देख लो। फिर आर से है एब्सेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रैप है ही नहीं, रैप, एब्सेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। फिर आई से आ जाता है एविडेंस ऑफ इनएफेक्टिव रैप, तो पहला है रैप ही नहीं है, सेकंड है रैप है पर वो इनइफेक्टिव है, रैप है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो है बट वो इनइफेक्टिव है, तो वो पॉइंट आ गया। फिर डी से अपना जाता है डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट,
एंड लास्ट आर से आ जाता है एविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाई। तो रिस्पॉन्स करने में इनइफेक्टिवनेस है, रिस्पॉन्स करने में इनइफेक्टिवनेस है, रिस्पॉन्स करने में इनइफेक्टिवनेस है। तो इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज क्या है? मेरी डॉक्टर, मेरी डॉक्टर, मेरी डॉक्टर। एम से मैनेजमेंट इनएबिलिटी, मैनेजमेंट इनएबिलिटी, मैनेजमेंट इनएबिलिटी, मैनेजमेंट इनएबिलिटी to oversee preparation of financial statement, evidence of ineffective aspect of control environment, evidence of ineffective aspects of control environment। फिर रैप नहीं है, रैप है बट इनफेक्टिव है। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डी से, एंड आर से रिस्पॉन्स इनफेक्टिव है। नाउ एविडेंस ऑफ इनफेक्टिव वाला में जो देखा, एविडेंस ऑफ इनफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, इट इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स तीन चीजें। तो इंडिकेशंस आर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस आर नॉट एप्रोप्रिएटली स्क्रूटिनाइज्ड, मतलब कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस वो स्क्रूटिनाइज प्रॉपर नहीं हुआ, स्क्रूटिनाइज प्रॉपरली नहीं हुआ, तो वो देख लो। फिर सेकंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड नॉट प्रिवेंटेड, मैनेजमेंट फ्रॉड प्रिवेंट नहीं हुआ, वो देख लो। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में ये सब देखना है कि मैनेजमेंट फ्रॉड अवॉइड नहीं हुआ, वो देख लो। और लास्ट थर्ड है मैनेजमेंट फेलियर टू इम्प्लीमेंट एक्शन ऑन डेफिशिएंसीज। तो मैनेजमेंट कोई एक्शन ही नहीं ले पाई, मैनेजमेंट एक्शन फेलियर, तो वो देख लो। तो अपना है इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या है? मेरी डॉक्टर, मेरी डॉक्टर, मेरी डॉक्टर। एम से मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू ओवरसी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ई से एविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स तीन चीजें। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस नॉट स्क्रूटिनाइज, मैनेजमेंट फ्रॉड हुआ है वो ओवरलुक हो गया, या फिर मैनेजमेंट ने जो एक्शन लिया है वो फेल होगा। फिर आर से रैप है ही नहीं, आई से है रैप है पर इनइफेक्टिव है, डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। आर से रिस्पॉन्स इनइफेक्टिव है। Now, matters to be communicated regarding deficiencies in internal control. Important points to be kept in mind while drafting letters of weakness. Auditor shall include in written communication of significant description of deficiencies. तो उसको क्या क्या स्टेट करना है, स्टेट क्या करना है उसके वो लेटर में। तो स्टेट क्या करना है? पहला तो डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसीज, जो भी डेफिशिएंसीज मिली है उसका डिस्क्रिप्शन दे दो। एंड सेकंड इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू एनेबल टू अंडरस्टैंड। तो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे दो कि इंटेंडेड यूजर्स उसके ऊपर से अंडरस्टैंड कर सके। सो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड डेफिशिएंसीज, टू अंडरस्टैंड द डेफिशिएंसीज, टू अंडरस्टैंड द डेफिशिएंसीज। नाउ important points with regard to letter of weakness are follows. The letter lists the area of weakness and offers suggestions. It should clearly indicate that it discusses only weaknesses which came to auditor's attention. This letter serves as valuable document for management for revising the system. The letter may also serve to minimize legal liability resulting from weakness. तो लेटर ऑफ वीकनेस में क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं? तो पहले तो दिस लेटर लिस्ट डाउन द एरिया ऑफ वीकनेसेस एंड ऑफर सजेशन। वीकनेस लिस्ट कर देता है, लिस्ट एरिया ऑफ वीकनेसेस, और सजेशंस दे देता है, सजेशंस दे देता है उसके सामने। सेकंड, इट शुड क्लियरली इंडिकेट दैट इट डिस्कसेस ओनली वीकनेस। बता दो कि भाई ये सिर्फ ओनली वीकनेस ही बता रहा है, वो बता दो। फिर दिस लेटर सर्व्स एज वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट। अगर मैनेजमेंट को फ्यूचर में कुछ इंप्रूव करना है तो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है फॉर मैनेजमेंट, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट फॉर मैनेजमेंट। फिर आता है दिस लेटर में ऑल्सो सर्व टू मिनिमाइज लीगल लायबिलिटी, minimize legal liability. So with that, we complete the whole essay 265, communicating deficiencies in internal control to TCWG and management.